Welcome back. We'll continue further the history of development of periodic table. Now, Dmitri Mendeleev and Lothar Meyer published their periodic table. हम देख चुके कि इसके आगे Dmitri Mendeleev और लोथार मेयर से पहले तीन लोग ऑलरेडी कोशिश कर चुके हैं. सबसे पहले योहान डेबोर्नियर, he was not that successful. Then सान कोर्टियर का भी इतना सक्सेसफुल नहीं रहा. Then न्यूलैंड कम अप विद द थियरी ऑफ ऑक्टेव्स, इतना अच्छा नहीं रहा. विल कंटिन्यू फर्दर. See, I was talking to you about the Dmitri and the Lothar Meyer. They independently published periodic table in 1869 and in 1870. They both constructed their tables in a similar manner. दोनों ने अपना टेबल जो है एक ही मैनर से कंस्ट्रक्ट किया. किस तरीके से? उन्होंने लेफ्ट टू राइट एक रोज के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज करना चालू किया एंड टॉप टू बॉटम उन्होंने ऐसे एलिमेंट्स को अरेंज किया जिनकी प्रॉपर्टी सेम है. सबसे लोएस्ट एटॉमिक वेट वाले को यहाँ पे, उसके बाद वाले एटॉमिक वेट वाले को यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, एंड दे फाउंड आउट कि जब तक प्रॉपर्टी रिपीट नहीं हो रही है उन्होंने नई रो चालू नहीं की. नई रो तभी चालू करते हैं जब प्रॉपर्टी रिपीट होना चालू होता है. एंड दे केप्ट इट हियर. उस तरीके से उन्होंने एक पीरियडिक टेबल बनाया. एंड सम आई डोंट नो फ्रॉम वेयर बट आई कम अक्रॉस दिस नोट. लेट्स रीड दिस नोट. इफ यू कैन रीड इट, आई डोंट नो. आई एम रीडिंग इट. I am reading it, please. Thank you. Thank you. This is the earliest version from his notebooks of Dmitry Ivanovich Mendeleev, a periodic table of the elements. At the bottom, he makes a tally sheet of the elements with the atomic weights as they were then known. उस टाइम पे जो पता थे उनकी टेली शीट्स बना रहा है. ठीक है, यहाँ पे हम वी कांट रीड इट बट समय ओवर हियर दिख नहीं रहा है. ये एक्चुअल नोट है. ओके, मेंडलीव का नोटबुक का एक पेज है, किसी ने रखा है. व्हाट ही इज डूइंग, ही क्रॉसेस देम आउट एज ही फिट्स देम इन. ये जैसे जैसे पीरियड टेबल में जाता थे, he used to cross it. The most beautiful thing about this, about this table is obvious. All the crossing out. सबसे important thing, all crossing out. Most important thing. He crossed out everything. मतलब he fit them everything inside over here. जितने भी non elements थे. This is something all of us can do. We are not supposed to create a new periodic table, but understand what he is saying. They both constructed their tables in a similar manner by arranging the elements in a row or column in order of weights and started with a new row or column when the characteristic of element began to repeat. नई रो तभी ऐड किया जब कैरेक्टरिस्टिक रिपीट हो रहा. The credit for the development of periodic law that we know today goes to the Russian chemist Dmitry Mendeleev. He was a chemistry teacher actually, and the German chemist Lothar Meyer. But Mendeleev was first to publish the periodic law. It can be studied as follow. He said this. He published the periodic law. What was the periodic law? The properties of element are periodic function of the atomic weight. He said the properties of an element are periodic function of the atomic weight. उसका मतलब क्या है? Let us understand this. I have
ये मेंडलीव का एक पीरियड टेबल मेरे पास है जो बेटर वे में लिखा गया. He said if you increase the atomic weight and arrange them accordingly, then after every period this property will repeat. That means properties of element are periodic function. Periodic function मतलब वो repeat होता है in increasing atomic weight. Atomic weight में बढ़ाने से. He said this, okay. In fact, Mendeleev was more courageous than Mayer. Mendeleev was more courageous than Mayer. He assumed that if a measured atomic weight of an element is placed in the wrong place, उसने और एक चीज किया, वो काफी courageous था. He assumed that अगर किसी का एटॉमिक वेट रॉन्ग है और पीरियड टेबल में डाल दिया है उस टाइम पे किसी ने, he changed the atomic weight. बोलते किसी को आप रॉन्ग जगह पे डाल देते हो. फॉर एन एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ. उस टाइम पे इंडियम था, इंडियम का एटॉमिक मास उस टाइम पे उन लोगों को ऐसा पता था कि 76 है. कितना है? 76. अभी 76 के हिसाब से आप देखने जाओ तो अगर हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में, आर्सेनिक का 74.9 है, सेलेनियम का 79 है, तो इंडियम इन दोनों के बीच में कहीं पे आना चाहिए. इंडियम हैज टू कम बिकॉज 76 है, इट हैज टू कम इन मिडल ऑफ दिस बिकॉज लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहे हो, इट हैज टू बी बिटवीन दिस टू. ही सेड पॉसिबल नहीं है, मेरे पास ऐसी कोई जगह ही नहीं कि मैं इंडियम को यहाँ पे रख सकूं. बोलते हैं इंडियम को यहाँ पे रख ही नहीं सकता, इंडियम का एटॉमिक वेट 76 हो ही नहीं सकता. बोलते क्यों? बोलते अगर सपोज मैंने उसको यहाँ पे रखा तो इंडियम की प्रॉपर्टी ना तो इसके जैसी है, ना तो इसके जैसी, ना तो बीच वाले की है. इंडियम की प्रॉपर्टी तो बोलते हैं कि ये ग्रुप की आ रही है, एल्यूमिनियम जैसी है, थैलियम जैसी है, तो इंडियम को बोले यहाँ पे डाल दो. उतना नहीं, उसका एटॉमिक वेट भी बोला आप लोग रॉन्ग ले रहे हो, 76 नहीं होना चाहिए, उन्होंने बताया 114 होना चाहिए. कितना होना चाहिए? ही चेंज्ड इट. ध्यान से देखिए, आप इसमें वो सेंटेंस पढ़ाई करता हूं जो मैंने यहां पे एक बार पढ़ चुका. ही वॉज मोर करेजियस देन मेयर. ही एज्यूम दैट इफ ए मेजर्ड एटॉमिक ऑफ एन एलिमेंट प्लेस्ड इन द रॉन्ग प्लेस, अगर आपने एटॉमिक वेट मेजर कर रखा है किसी एलिमेंट का और वो रॉन्ग जगह पे है, देन द एटॉमिक वेट मस्ट बी रॉन्ग. एटॉमिक वेट आपने रॉन्ग फाइंड किया है और रॉन्ग जगह पे, तो उसका प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रहा है, इट हैज टू बी समवेयर अदर प्लेस एंड उसका एटॉमिक रॉन्ग होना चाहिए. इन सम केसेस दिस वाज ट्रू आल्सो. फॉर एग्जांपल, previously assigned atomic weight of indium was nearly 76, but this could not be placed in the periodic table between arsenic and selenium. Mendeleev suggested that its atomic weight should be 114 instead of 76, and जब actually find किया गया, it was nearer to the currently accepted value 114.82. Mendeleev ने 114 सजेस्ट किया और एक्चुअली मिला कितना? तो he was more courageous, he was genius. Okay, not only that, besides that, chemical properties of indium was inconsistent with the group pattern defined by the non properties of aluminium and thallium. जो एल्यूमिनियम थैलियम की प्रॉपर्टी उसके ग्रुप पैटर्न के हिसाब से इंडियम की आनी चाहिए और ये लोग कहीं और डाल रहे थे. नॉट पॉसिबल. इट सपोर्टेड मेंडलीव, मेंडलीव को सपोर्ट किया ये चीज ने. इन द सेम वे, और एक चीज देखिए, यहां पे पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39.1 है, आर्गन का 39.9 है, पोटेशियम से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इट शुड बी केप्ट आफ्टर. पोटेशियम कहीं पे डालना चाहिए, आर्गन को यहाँ पे कहीं पे डालना चाहिए. बोलते ऐसा नहीं होगा, इसका 39.9 भले रहा, उसको हम उससे लेफ्ट हैंड साइड पे डालेंगे, राइट हैंड पे नहीं डालेंगे.
क्यों? बिकॉज आर्गन एक ग्रुप नहीं दिखाया गया है, एक जीरो ग्रुप करके एक ग्रुप है का, बोलते उसके अंदर आर्गन को रखो, बोलते उसकी प्रॉपर्टी उनके जैसी है, बट उसका एटॉमिक वेट लेस है इससे और ज्यादा है, सॉरी उसका ज्यादा वाला लेफ्ट हैंड साइड पे कैसे आएगा? कोई बात नहीं, ज्यादा तो ज्यादा रहने दो, उसको वहीं पे रखो. एंड he didn't care about it. In the same way, though the atomic weight of potassium 39.10 less than the atomic weight of argon 39.95, Mendeleev placed argon before potassium because argon possesses the properties similar to the elements of group 0 and potassium possesses property of the similar to group 1. बोलते कोई बात नहीं, वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट नहीं होगा चलेगा, डिक्रीज हो जाएगा तो भी चलेगा, प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए. और एक अच्छा इंसिडेंट, subsequent studies about periodic system have shown that the arrangement of element is not ordered strictly according to atomic weight. atomic weight बढ़ेगा ऐसा हर बार जरूरी नहीं है. For example, atomic weight of iodine is less than tellurium. आप देखिए यहाँ पे टेल्यूरियम का 128, आयोडीन का 127, तो आयोडीन शुड हैव बीन केप्ट अर्लियर देन द टेल्यूरियम, नहीं चलेगा. क्यों? बट एटॉमिक वेट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. टेल्यूरियम की प्रॉपर्टी बोलते हैं ऑक्सीजन सल्फर जैसी है, उसको एक साथ रखो. आयोडीन की प्रॉपर्टी हैलोजन ग्रुप फ्लोरीन क्लोरीन जैसी है, उसको एक साथ रखो. बट एटॉमिक वेट डिक्रीज हो रहा है, कोई बात नहीं, जैसे उसको एक मार, उठा उसको, उठा पंक्ति. It's okay over here, the property should be matched. This is what he taught. Thus at that time they showed similar properties. Thus at that time the basic concept of Mendeleev was to arrange the element having similar properties in the same group. Okay, he was so genius. Let me explain another example. He did something extraordinary when he published. उस टाइम पे गैलियम एंड जर्मेनियम पता नहीं थे, they were not known. उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स पता थे, he was arranging them according to atomic weight. कैल्शियम 40.1 का एटॉमिक वेट, उसके बाद 47.9 टाइटेनिक का एटॉमिक वेट. ही सेड इसको यहां पे लगा दो, माफ करना टाइटेनिक नहीं टाइटेनियम, टाइटेनियम का एटॉमिक वेट. ओके, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ संदीप भाई चाय नहीं पीते आजकल. ओके, विल कंटिन्यू फर्दर. सी ओवर हियर, टाइटेनियम का एटॉमिक वेट. सो ही वाज सपोज्ड टू अरेंज टाइटेनियम ओवर हियर बिकॉज दैट्स द नेक्स्ट एटॉमिक वेट. ही सेड रुक, तू यहां पे नहीं आएगा. क्यों? बोलते यहां पे और एक एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक वेट इन दोनों के बीच का है, एटॉमिक वेट इन दोनों के बीच का है, और इसकी प्रॉपर्टी बोरॉन और एल्यूमिनियम जैसी है. ओके, उसकी प्रॉपर्टी बोरॉन और एल्यूमिनियम जैसी है. सेम वे यहां पे उसने गैप छोड़ दिया सिलिकॉन के नीचे, बोलते ये गैप छोड़ो, यहां पे और एक एलिमेंट आएगा. ओके, जो एल्यूमिनियम के नीचे आने वाला था उसको उन्होंने इका एल्यूमिनियम बोला. क्या बोला? इका एल्यूमिनियम. और इसको बोला इका सिलिकॉन. इका का संस्कृत में मतलब होता है नेक्स्ट. आई वंडर, ये आदमी को संस्कृत भी पता थी. 150 साल पहले ये बंदा जीता था. ओके, रशियन एंड इंडियंस आर नोन एज गुड. पता नहीं सीखा होगा किसी के पास से, बट इट ओके. आई स्टिल वंडर, सोचिए तो सही. He left the gaps for the elements below aluminium and silicon. Mendeleev named these elements as Ica aluminium and Ica silicon. In Sanskrit, Ica means next. Not only that, he has उसकी predicted property. उसकी प्रॉपर्टी भी प्रिडिक्ट की, जैसे मैं बता रहा था ना, उसकी हाइट इतनी, इसका कलर ये, वैसा ही देखो. ही सेड जो नया एलिमेंट आएगा इका एल्यूमिनियम,
उसका एटॉमिक वेट 68 होगा, उसका डेंसिटी 5.9 होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। अगर वो ऑक्साइड के साथ कंपाउंड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ तो E2O3 फॉर्मूला होगा एंड क्लोरीन के साथ ECl3 होगा। ऐसा प्रिडिक्ट करके बैठ गया, जगह छोड़ दी उसने। एंड गैलियम मिला उन लोगों को, बाद में काफी सारे एक्सपेरिमेंट कर गैलियम मिला, गैलियम फाउंड, पता किया कि क्या वो मेंडलीव भाई सही बोल रहे थे, जरा देखते हैं कितना झूठ बोलते हैं। एटॉमिक वेट 70, एकदम नजदीक में। उसकी डेंसिटी 5.94, इसने 5.9 बोली थी। उसका मेल्टिंग पॉइंट 302.93। सर ये कहाँ लो है? हेलो, डिग्री सेल्सियस नहीं, केल्विन में 33 डिग्री सेल्सियस। ओके, अहमदाबाद में पिघल जाता है। अहमदाबाद 53 में हम रहते, समर टाइम पे 52, 33 डिग्री सेल्सियस पिघल जाएगा। लो मेल्टिंग पॉइंट है, बटर की तरह पिघल जाएगा। गैलियम ऑक्साइड Ga2O3 फॉर्मूला बना, उसने E2O3 बोला था, E की जगह पे Ga मिला है उसको। उसका क्लोराइड GaCl3। सेम वे इका सिलिकॉन के बारे में भी ऐसा ही कुछ उसने प्रिडिक्ट किया। एटॉमिक वेट 72, डेंसिटी 5.5, मेल्टिंग पॉइंट हाई, फॉर्मूला EO2 ECl4। एटॉमिक वेट मिला 72.6, 5.36 डेंसिटी। ये हाई मेल्टिंग पॉइंट 1231 केल्विन, 1000 डिग्री सेल्सियस है। ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्ट। GO2 फॉर्मूला, GCl4 फॉर्मूला है कि नहीं? आप लोग का रोज विधि नहीं चेंज होता है। ये बंदे ने 150 साल पहले ये बताया था, आज तक चेंज नहीं हुआ है। वो तो छोड़िए, ये बंदे ने जो उसका पीरियडिक टेबल बनाया था, इतने ही ग्रुप नॉन थे उस टाइम पे। इलेक्ट्रॉन के बारे में किसी को पता नहीं था, प्रोटॉन के बारे में किसी को पता नहीं था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में किसी को पता नहीं था। एक्चुअली ये सब तो बेसिक्स है केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पता किया गया, न्यूट्रॉन पता किया, प्रोटॉन पता किया गया, नया स्ट्रक्चर ऑफ एटम निकला। पीरियडिक टेबल चेंज हो गया है। नया पीरियडिक टेबल जब आता है तो वो ऐसा है, इसके अंदर 18 ग्रुप्स है, 18 कॉलम्स है। और ये भाई सब बैठे थे खाली 7 या 8 कॉलम के साथ, खाली 63 एलिमेंट्स उसको पता थे। आज 114 एलिमेंट्स पता है। ओके, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नया स्ट्रक्चर बन गया, नया वे ऑफ एटॉमिक नंबर आ गया, पूरा सब कुछ चेंज हो गया। लेकिन मजाल है, ध्यान से सुनना ये पॉइंट, मजाल है कि ये बंदे ने जो एलिमेंट को जहां पे बिठा के रखा है नए पीरियडिक टेबल में, आज भी वो वहीं पे, कोई उसको हिला नहीं पाया 150 साल के बाद। दैट्स व्हाई ही वाज सो जीनियस। उसने जो सोचा, जो किया, 100% परफेक्ट। 150 साल के बाद पूरी सब चीजें चेंज हो चुकी, फिर भी आज वहीं पे हुई। कितना सीरियसली काम किया होगा। हमारी 2 दिन पहले रखी हुई नोटबुक हमें मिलती नहीं सर, केमिस्ट्री नहीं, असाइनमेंट बुक क्या जतरी खबर नहीं, बहुत सोधी पण 2 દિવસ पहला तो खबर आती यहाँ आती, 2 दिन के बाद नहीं मिलती है। मम्मी चिल्लाती है, खबर नहीं पड़ती। ऑनेस्टली होता है, होता है यार घर पे हमारे साथ कि विद इन ईयर मोबाइल का जो वर्जन आया है अपडेटेड हो जाता है, इसका नहीं हुआ है आउटडेटेड। सोचिए, दैट्स व्हाई ही इज जीनियस। आई लव टू टीच दिस टॉपिक।